Hello everyone, welcome to Tutor for Maths. Now, let's proceed to the 13th question from exercise 9.1, that's chapter number 9, applications of trigonometry. So now, 13th question, what does it says? Tablet is not working today, right? Chapter number 9, question number 30. हाँ जी, 13th question की है. What does it says? Can they, and as observed from the top of 75-meter high building, एक 75 meter लंबी building है और the height दे देती है. So this is your building. Sorry, lighthouse, not building, it's lighthouse. 75-meter high lighthouse. It's not building, it's lighthouse. $75 हाई है सी लेवल से. द एंगल ऑफ डिप्रेशन, अच्छा पंजाबी जिन्होंने कहते निवान कोण, ठीक है, ते इंग्लिश है डिप्रेशन. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੀਚੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੇਟਾ ਉਹ ਉਚਾਨ ਕੋਣ ਹੁੰਦਾ, that is elevation angle ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਉੱਪਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਉੱਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨੀਚੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਂਗਲ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ डिप्रेशन एंगल यानी निवान कोण. ए वाला एंगल ते इथों अगर मैं ए वाला एंगल बनानी है, दीज आर सेम, क्योंकि ये दो पैरेलल लाइंस है, तो जो ए वाला एंगल होएगा वही होएगा बाय alternating. Kindly mute yourself please. हाँ जी, so ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਦੋ ships है. So this is ship 1 and this is ship 2. ठीक है, कहते इदनों ਇਹਦੇ ਤੋਂ कोई बंदा ਇੱਥੇ खड़ा है, ਇੱਥੋਂ ਉਹ देख रहा है दो ships ਨੂੰ. ए वाली देखी, देन ए वाली देखी. मेरी लाइन स्ट्रेट नहीं बन रही है बट तुसी स्ट्रेट बनानी है, ठीक है. सो दिस इज द फिगर. हुन एंगल्स की है 30 डिग्री ते 45 डिग्री. लेट अस सपोज दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी. हुन 30 डिग्री कितने होएगा ते 45 डिग्री कितने होएगा. जिन्ना ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ डिप्रेशन या निवान कोण कहने आ ना, तो इट मीन्स ए वाला एंगल है. पहले वाला इथे इस शिप नु देखन वाला ए एंगल है, ते इस शिप नु देखन वाला ए वाला एंगल है. उत्तों देख रहे हैं. हुन ए वाला एंगल इदे बराबर होएगा ते ए वाला एंगल इदे बराबर. ठीक है, हुन जिन्ने ਅਸੀਂ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਉਹਨਾਂ ਐਂਗਲ ਵੱਧਦਾ. ਇਟ ਮੀਨਸ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਆ 30 ਡਿਗਰੀ ਇਹ ਆਏਗਾ, 45 ਡਿਗਰੀ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਨੀਚੇ ਨੇ. ਸਾਡੀ ਗਰਦਨ ਉਨੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਚੀ ਚੁੱਕਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਐਂਗਲ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ. ਓਕੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਿਪ ਦੂਜੀ ਸ਼ਿਪ ਦੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਬਿਹਾਈਂਡ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स. मींस व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, ਇਹ ਚੀਜ਼ कैलकुलेट कर. So what you are given की है CD थोड़ा लाइट हाउस की हाइट है 75 मीटर. दो एंगल है, एक है 30 डिग्री, एक है मेरे को 45 डिग्री. हाँ जी बेटा, 30 डिग्री वाला ट्रायंगल का नाम बोलो अनम्यूट होके. ACD ट्रायंगल A मैम BAC मैम BAC. बेटा ए एंगल बीच में कैसे आएगा, एंगल सेंटर में 90 वाला. यस, ओके मैम, ACD. एंड फॉर 45 डिग्री BCD. नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? PBH. Yes, for both? Yes ma'am. Okay, get me the value of PBH for 30 degree triangle. What is P in triangle A? 75 meter. 75 meter. Okay, fine. And what is B? Let us suppose this is X. If I suppose this as X, मैं बच्चे ये वाले को X ले रही हूँ AB को,
तो ये क्या रही है, AC है। AC किसकी लेंथ है, चलो AC ही लेते हैं, अभी हमें कुछ नहीं ना दिया हुआ, कहीं और डिस्टेंस तो नहीं दिया हुआ बिटवीन टू, नहीं दिया हुआ, नहीं दिया हुआ। ओके, H क्या है भाई मैम AD। ओके, नाउ फॉर द ट्राइंगल विद एंगल 45 डिग्री, मैम P75। P75, what is B? BC. मैम AC, BC. सॉरी मैम BC। Ma'am, BC. Yes. BC. And what is H? BD. DB. मैम BD। So we have finished the 20% work. 20% ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ, PBH ਕੱਢ ਲੈਨੇ। ਹੁਣ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੈ? Do we need these things? No. नहीं चाहिए ना, ये हाइपोटेन्यूज वाली नहीं चाहिए, कहीं पे भी इस्तेमाल नहीं हो रही, तो ये चीज नहीं चाहिए। Again we are left with P and B in both cases. So what is this? Tan 30 degree will be equals to P मैम over 1/√3। 75 over AC. So it is 1/√3. 75 over AC. AC comes out to be 75√3. So we got this value of AC. AC मिल गया बच्चों। अब इस ट्रायंगल में Yes, ma'am. tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री क्या है आपके पास? 75 over BC. So say tan 45 is 1. It is 75 over BC. BC इधर गया, BC की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 75. आपको किसकी वैल्यू चाहिए थी? AB की। AB कैसे निकाल सकते हो? टेल मी। AC minus AB. AC minus BC. BC. AC की वैल्यू क्या है? 75√3. BC की वैल्यू क्या है? 75. So 75 बाहर आया, √3 minus 1. So you can leave your answer again here also. नहीं तो क्या करोगे? √3 की वैल्यू डालो, 1.732 minus 1 किया तो 75 into 0.732, get the answer in meters. So this is your answer. क्लियर? जो चीज इसमें नई थी वो सिर्फ ये था, द वर्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो उसमें घबराना नहीं है, डिप्रेशन का को या हमें वर्ड यूज होता है पंजाबी में निबान कोण, तो इट मींस ऊपर हमने एक लाइन पैरेलल बनानी होती है। पहली शिप को देखने का मेरा एंगल ये था, ठीक है, दूसरी शिप के लिए ये था, और ऑल्टरनेट एंगल्स के कारण जो ये एंगल है 45 वही ये वाला है, और जो ये एंगल था 30 वही ये वाला। तो हमने ऊपर वाले निवान कोण यानी डिप्रेशन को हमने एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दैट इज उचान कोण में कन्वर्ट करना था। पहला स्टेप ये फिगर में था। क्लियर? ठीक है, आई मेड इट क्लियर लाइक दिस। ठीक है बच्चों, चलिए Yes. अब आप लोगों ने मेरे को 12th क्वेश्चन करके देना है। 12th क्वेश्चन इज वेरी वेरी गुड। ये मैं जानबूझ के पहले 13th किया क्योंकि वो थोड़ा सिंपल था। अब 12th देख लो, मैं फिगर आपको समझा देती हूँ। कहते फ्रॉम अ टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ केबल टावर। देखो दो चीजें हैं, यहाँ पे एक बिल्डिंग है 7 मीटर, यहाँ पे मेरे पास केबल का टार, ठीक है, मोबाइल टावर डालू जैसे होता है, ठीक है, ये मेरे पास बिल्डिंग है। अब क्या दिया हुआ है? कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द, इसका हमने केबल का टॉप देखना है। कहां से देखना है? फ्रॉम द टॉप, इसकी टॉप से, वर्ड देखो, बिल्डिंग के टॉप से इस केबल टावर की टॉप को देखना है। तो देख लेते हैं, देख लिया ये एंगल कितना। अब एंगल बनाना है तो मुझे ग्राउंड तो होनी चाहिए ना, ये ग्राउंड बन गई, बेस बन गया। ये एंगल कितना दिया हुआ है?
60 डिग्री। अब इसी टॉप से उन्होंने क्या कहा है, इस केबल टावर के पैरों को देखना है। देख लिया। अब ये पैरों को जो देखना होता है, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में ऊपर लाइन बनाई थी ना, जब नीचे की तरफ देखना हमें एक लाइन ऊपर बनानी है, तो इसमें देखो जब आपने इसके इस फुट को देखना है, इसके ऊपर ये लाइन ऑलरेडी बनी हुई है, ये एंगल कितना दिया हुआ है 45 डिग्री। तो जितना ये एंगल है मेरे पास उतना ही ये एंगल होगा। यस और नो? ये चीज पहले बताओ, क्लियर होगी सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. सबको समझ आई? निवान पंजाब डी क्लास आपको बेटा क्लियर हो रहा है? स्टूडेंट्स ऑफ डी क्लास, Yes, ma'am. ये ऊपर देखने के लिए उसका टॉप देखा था 60 डिग्री इसके टॉप से, और इसके टॉप से इसका फुट देखा है हमने। उसका जब नीचे देखना है तो मेरा डिप्रेशन एंगल निवान कोण होता है। तो जो ये एंगल है बेटा वही ये एंगल। ठीक है, आपको क्या निकालना है, आपने इस केबल टार की हाइट निकालनी है। सो ये मैं मान रही हूँ हाइट में क्या ले रही हूँ, h मीटर्स। क्या ले रही हूँ, h मीटर्स। ठीक है, यानी h। अब ये मेरे पास बिल्डिंग है, दो एंगल्स कौन से हैं? तो पहले तो यहाँ पे हम थोड़ा लिख देते हैं। ए बी मेरे पास क्या है, हाइट ऑफ बिल्डिंग, वो बेटा क्या दी हुई है 7 मीटर्स। एंड सी डी क्या दी हुई है, हाइट ऑफ केबल टार, वो मुझे क्या दी हुई है h मीटर्स। चलिए, अब मेरे पास दो ट्रायंगल्स या दो एंगल्स पहले देखो कौन सा है, 45 डिग्री है एंड 60 डिग्री है। चलो जी, 45 डिग्री का ट्रायंगल बोलिए, हरी आप। 45 डिग्री का ट्रायंगल ABC. ए बी Ma'am, सी, AB. राइट। एंड व्हाट अबाउट 60 डिग्री? इसको पॉइंट दे देते हैं AD. ए। बेटा जहां पे, अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, जहां पे 90 डिग्री होता है वो वाला अल्फाबेट सेंटर में आना होता है। सो इट्स ए ई। अच्छा, अगर ये 7 मीटर है तो ये भी क्या होगा, 7 meter. 7 meter. तो ये कितना रह गया, डी ई H plus 7. h माइनस 7। तो ये भी मैं लिख लेती हूँ, डी ई कितना आ गया h माइनस 7। ठीक है, अब इस ट्राइंगल के लिए पीबीएच बोलो, बोलो बोलो। एबीसी ट्राइंगल के लिए पीबीएच बेटा बोलिए। मैम P 7 meter. यस, मैम बेस BC. बेस बीसी, एच मैम हाइपोटेन्यूज AC. करेक्ट। एईडी ट्राइंगल के लिए बोलो। मैम P 7 Perpendicular H minus H 7. यस, एच माइनस 7। बेस, मैम बेस AE. क्या एई और बीसी सेम है या नहीं? जितना एई है मैम रेक्टेंगल बन रहा है, Ma'am, same है. सेम है, तो यहाँ पे भी मैं बीसी लिख सकती हूँ। Ma'am, yes. यस मैम. ओके, एच क्या है, AD. मैम Ma'am, AD. क्या हमें एच की जरूरत, अगेन चेक करो, पढ़ रही है कहीं पे? ये 7 गिवन है, ये No, ma'am. Ma'am, no. ये दोनों सेम सेम, इट मींस अगेन एच की जरूरत तो Yes, मुझे ma'am. पढ़ ही नहीं रही। सो अगेन वी आर लेफ्ट विद 2 पी एंड बी। क्या होगा, tan 45 डिग्री Tan P over 45. 7 over BC। tan 45 1 होता है, 7 over BC। तो मेरे पास, ओप्स, सारी ड्राइंग क्लियर हो BC गई। is equal शिट शिट, अंडू करते हैं। oh गॉट इट। तो BC मेरे पास बच्चों क्या आ गया, 7 मीटर्स। BC आ गया, BC की आगे वैल्यू
ओके अब इस पे आ जाए Yes. 60 डिग्री वो क्या है h माइनस 7 ओवर BC 60 डिग्री क्या होता है √3 h माइनस 7 ओवर BC की वैल्यू क्या अभी आपने निकाल के हटे हो 7 जस्ट पुट इट आउट ठीक है तो ये क्या आ रहा है √3 इन क्रॉस मल्टीप्लाई करो 7√3 इक्वल्स टू h माइनस 7 ये माइनस इधर जाएगा 7√3 प्लस 7 which is equals to h 7 common √3 plus 1 meters. So this is the height of the cable tower. Clear everyone? Yes, ma'am. Clear? Again आपकी इच्छा है यहाँ Ma'am. पे छोड़ना नहीं तो you know better under root की value put करें and get the answer. ठीक है? Clear है? Yes, ma'am. Everyone? Yes, ma'am. Yes, Done. ma'am. 14th क्वेश्चन जो मैंने अभी 12th देना था 12th नहीं मैं दे रही होमवर्क 14th क्वेश्चन आपका होमवर्क है एंड टुमारो वी आर गोइंग टू कंप्लीट दिस विद द 16th क्वेश्चन मैं कराऊंगी एंड देयर विल बी टेस्ट टुमारो टेस्ट 14th क्वेश्चन ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾना है ਤੇ ਕੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਹੋਮਵਰਕ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ क्लियर आज ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਕੱਲ ਕੀ ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਸਿਰਫ ਲਗਾ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਪਰੇ ਚਲੇਗੀ ठीक है जी so I am ending this video again here so we will meet tomorrow thank you कोई डाउट तो नहीं है क्यों कल क्या है हमें नहीं छुट्टी बच्चे छुट्टी नहीं है किसी चीज की लोहड़ी रात में कल लोहड़ी है। हाँ कल लोहड़ी रात को होती है तो क्लास लगेगी ठीक है चलो Okay, ma'am. ma'am. बाय